I touch and salute the holy feet of God the Mata, the most powerful and the most merciful. We are today celebrating the first edition of Nayab, organized by the Craft Masters at Taj Mahal Palace, Mumbai. On this day, I don't know what to say. Such officers is needed if any country want to restore its self-respect. Our own Prime Minister, for taking the decision as the Prime Minister of this country, get killed on our own soil by a foreign terrorist group. There is no clue how to find it out without any fear. He involved himself and he restored the self-respect of India, the self-respect of Tamils, because the great Rajiv Gandhi ji was killed by a Tamil terrorist group. So we all felt very sad. The real Tamil self-respect has been restored by none other than Dr. D.R. Karthikeyan ji, former Director General of CBI, and Sri Ajay Singh ji, Founder Director, Craft Masters and Nayab, distinguished guests, artists and art lovers, my dear brothers and sisters. As I said, it is immense joy and great honor that I stand before you today in the evening in the inaugural edition of Nayab, organized by the Craft Masters in the association with FICCI. And this evening is not merely a celebration, but a profound acknowledgement of India's rich and diverse heritage in arts and crafts. First and the foremost, I extend my heartiest congratulations to Sri Ajay Singh ji, Founder Director of Craft Masters and Nayab, and the Chairperson of the FICCI, YFLO, Dr. Payal Konadia, for putting together this magnificent event. Your dedication to bring the best of our heritage, arts and crafts to the forefront deserves our highest appreciation. We are gathered here to witness the masterpieces that embody the essence of Indian artistic brilliance. From the intricate patterns of tribal embroidery to the stunning craftsmanship of our village artisans, each piece displayed is a testament to the boundless creativity and skill that our artists possess. Art in India have evolved in the most unexpected and the enchanting places, our villages, tribal communities and traditional workshops. These are not mere artifacts but living legacies that connect us to our past and inspire our future. India is undoubtedly the cultural capital of the world, rich in both tangible and intangible art forms. The beauty of our heritage arts lies not just in their artistic appeal, but in their stories, traditions, and the tireless hands that crafts them. It is imperative that we document, promote, and celebrate these arts to ensure their survival and prosperity. Our Prime Minister has rightly brought global recognition to yoga, a vital aspect of our intangible heritage. Similarly, it is our collective responsibility to bring our art and artists to the world stage. The vision of Viksit Bharat, a developed India, will only be complete when we revive and restore our arts, ensuring that they continue to thrive and inspire future generations. Nayab is not just an exhibition, it is a movement, a crucial initiative that showcases the finest of our heritage, arts and crafts. This initiative, in collaboration with the FICCI and YFLO, reflects a deep commitment to preserving our cultural treasures
while promoting them on a global scale. In closing, I wish Nayab and Fiki YFLO tremendous success. May this exhibition serve as the beacon of hope and a platform for our artists to shine. Let us all embrace the spirit of this celebration and continue to champion our heritage with the pride and passion it is so richly deserves. बहुत बहुत धन्यवाद. जय भारत, जय महाराष्ट्र. Thank you everybody. अगर और सम्मान देते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट को, उससे कुछ ज्यादा हमें अपने कला और हमारी संस्कृति को देना चाहिए. नमस्ते और जय महाराष्ट्र, जय हिंद. उनके लिए ये एक डिलाइटफुल इवनिंग बोल सकते हैं ना, उनके लिए ट्रीट है. जैसे खाना खाने वाले को अच्छे खाने, तो जो आर्ट लवर है उनके लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने आयोजन किया है. और यहाँ पे इतने सारे आर्ट्स हैं, आप हर एक पीस को आप देखेंगे उसमें कुछ ना कुछ अलग ही उसमें एक आर्ट है. और मैंने 3 चीजें यहाँ से ली है जो बहुत ही डिफरेंट है. और तंजौर का पेंटिंग जो हमारे भारतीय संस्कृति साउथ इंडिया का, ये बहुत ही गोल्ड लीफ से उसमें पेंटिंग किया जाता है. और जो डिटेलिंग है उसमें, और उस पेंटिंग के अंदर मीनाक्षी शादी को दर्शाया गया है उसमें. तो बहुत शुभ होता है इस तरह की पेंटिंग रखना चाहिए. तो मैंने ये सोचकर उसको रखा है. और बाकी 2 भी पेंटिंग मैंने जो बाय किया है उसमें बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग और आर्ट वर्क है, 3D इफेक्ट्स है. सो मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर. और मुझे लगता है कि इस तरह के पेंटिंग जो इन्होंने प्रोग्राम आज रखा और भी होने चाहिए, ताकि हम लोगों को बहुत ही डिफरेंट और बहुत जो इजिली अवेलेबल नहीं है इस तरह की आर्ट, वो आर्ट जिसे नेशनल ट्रेजर कहा जा रहा है. हमारे लिए जिंदगी का एक मिशन है कि हम जो देश की धरोहर है, जो कल्चरल हेरिटेज है, जो उसकी रिचनेस है, जिसको लेके हम इतना प्राउड फील करते हैं कि हमारा देश कमाल है, ये एक्चुअली जो आप देख रहे हैं आसपास, ये उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन है. ये हमारे देश के जो हाईएस्ट अवार्ड विनिंग आर्टिसंस हैं, जो पद्म विभूषण, पद्म श्री, नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिसंस हैं, ये उनके बेस्ट आर्ट वर्क्स हैं. भारत देश में पहली बार हुआ है ऐसा कि हमारे देश का जो कल्चरल धरोहर की इस टाइप की एग्जिबिट फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एक सिंगल रूफ के नीचे हुई है. जब राधा कृष्णन जी को पता चला, उन्होंने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस पे चेक किया. इवन दिल्ली में भी जब हमने किया था, तो जो हमारे कल्चर मिनिस्टर है श्री विजेंद्र सिंह शेखावत जी, इवन वो खुद चार्टर प्लेट करके आए, बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं इसको मिस नहीं करना चाहूँगा. मुझे हमारे देश की संस्कृति की जड़, और हमें ये प्रोत्साहन चाहिए गवर्नमेंट से भी, प्राइवेट सेक्टर से भी, लोगों से, कलेक्टर से, बिजनेसमैन से, कि वो इसको बढ़ावा दें, हमारे संस्कृति को आगे लेके जाने में हेल्प करें, उनकी नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करें कि वो और खूबसूरत काम क्रिएट करें और हमारे देश के नाम को आगे लेके जाए. हम शुरुआत कर रहे हैं इंडिया से, दिल्ली, हैदराबाद और ये मुंबई जो फर्स्ट एडिशन, और अगले साल हम इसको देश के बाहर लेके जाएंगे, पूरे भारत के नाम को हमारे. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लगभग 70 से ज्यादा मास्टर आर्टिस्ट के 100 से ज्यादा मास्टरपीसेस को हमने एग्जिबिट किया है यहाँ पे. ये अक्रॉस द कंट्री लगभग 17 स्टेट से हैं. तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश की एक नुमाइंदगी हो रही है यहाँ पे एक छत के नीचे ताज. राज्यपाल जी तो जैसे आप सुन भी रहे थे और अभी वापस आते भी बोले थे, वो बहुत खुश थे देखे कि हमारे जो कलाकारों की सोच है, वो बात कर रहे थे कि इवन जो कलर्स वे यूज करते हैं वो इतने परफेक्ट बैलेंस्ड है. ये सारी चीज जो हमारे देश में ही चीजें मिलती हैं, जो मटेरियल्स हम यूज करते हैं, हम सिर्फ एक कैनवस के ऊपर लिमिटेड नहीं है. हमारी जो आर्ट फॉर्म्स है उनकी विविधता इतनी ज्यादा फैली हुई है और उसकी डायमेंशंस इतनी ज्यादा है. मेरा ख्याल हम जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे उतना अपने आप को सम्मोहित करते जाएंगे, बहुत ही ज्यादा. हम 2 तरीके से कलाकार जो हमारे देश के उनको देखते हैं. एक है मॉडर्न आर्ट, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट. मेरा ख्याल उसमें पहले ही बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. हमारा जो फोकस है, जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स है, जैसे आपने जो एग्जाम्पल्स लिए, अभी ये चीज जो है कि सिल्क से गणपति की जो पूरी प्रतिमा बनी है, धागे से, ऐसे जो आर्ट फॉर्म्स हैं ये विलुप्त होते जा रहे हैं. तो हमारी जो पूरी कोशिश है अभी तो ये है कि हम इन आर्टिजन्स का नाम बनाएं. इनकी भी जब हम बात करते हैं
इनके भी कहीं नाम नहीं है। ज्यादातर आप सभी ने जो कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म्स वाले हैं, आपने एच.एस. रजा का नाम सुना होगा, M.F. हुसैन का, राजा रवि वर्मा का, अमृता शेखर का, पर इनके नाम लोकप्रियता में नहीं है। तो हमने क्या किया है, वैसे जब आप पूछें, अगर आप घूमेंगे तो देखेंगे कि हमने इनके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया, इनके वीडियोस क्रिएट किए, हम इनके घरों में गए, पूरी टीम लेके, जैसे आप वीडियोग्राफर्स लेके हमने उनकी स्टोरीज बनाई। तो QR कोड्स में आप उनका रहन सहन, वो कैसे रह रहे, उनकी लेगेसीज क्या है, कितने परिवारों से, कुछ लोग हैं जो कई सेंचुरीज से लगे हुए हैं इस काम में। हमारा पूरी जो कोशिश है, ये पैशन, वो यही है कि हम इस देश के जो ट्रेडिशनल आर्टिज्म है उनको इतना प्रोत्साहन दें, उनके तक पैसा पहुंचे, ताकि और उनकी आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ी इसमें खुश होके काम कर सकें। बिकॉज अगर कोई इतने साल लगा के, जैसे अभी जब आप पूछ रहे थे कि गवर्नर साहब बाहर बात कर रहे थे, वो जो चेस्ट पर आर्टिस्ट को बनाने के लिए उसको 10 साल लगे हैं। तो अभी आप समझिए कि किसी इंसान ने अपने 10 साल दे दिए, वो भी हाईएस्ट आर्टिस्ट है, और वो भी ऐसी आर्ट फॉर्म है जो लुप्त हो। हमारी कोशिश ये है कि हम आज में लेके आए, हम लोगों को जो टॉप के आर्ट लेवल्स हैं, जो कलेक्टर्स हैं, उनको दिखाएं, ताकि आर्टिज्म तक भी उस चीज का पैसा पहुंचे। इकोनॉमिक्स हैव टू मेक सेंस फॉर द आर्टिस्ट।